Very good morning, 10th class. How are you all? I hope you all are healthy and safe at home, following all the rules and regulations, and of course, studying. Everyday lessons, you all are getting your lessons every day. So, be regular, be particular in your studies. Go through your lessons so that you can understand them in a better way. हम आमने सामने क्लास नहीं कर पा रहे हैं. This time I'm not able to solve if you have any queries. So I'm trying to explain everything as better as I can. So go through your lessons again and again. And I told you earlier, it's a very important chapter. History का ये lesson बहुत important है बच्चों, तो इसे ध्यान से सुनना. और जैसा मैंने previous lesson में कहा था, take it as a story. Don't take it as a lesson, take it as a story. कहानी यूरोप की, फ्रांस की, नेपोलियन की, हाँ कहानी की जैसे इसको समझो. So a small recap of our story. We started yesterday. We started a lesson what happened after French Revolution. First time democracy came and French Revolution declared, very important thing, that now the sovereignty rests in the hands of the people and not the monarchy. Then we went through the various measures that were taken by revolutionary government in France to create unity among its citizens. ये measures write down in points. हाँ ये सब points में लिखने का आंसर है. So these were the various measures. आगे की अब हम story start करते हैं. कहाँ ख़त्म करी थी? That after bringing change in France, now the revolutionaries took this responsibility to free other European people from monarchy. So this was what happened. Now let's study. When the news of the events in France reached the different cities of Europe, what was happening in France? धीरे धीरे ये news दूसरी cities में. See, there were no social media or television or breaking news type in those days. So after few days, it took few days to reach to other cities, other countries, other empires, what was happening in France. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये न्यूज़ कि फ्रांस में किंग को हटा दिया गया है, अब वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एंड सच न्यूज़ as such news spread in other parts of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobean clubs. याद है क्या थे Jacobean clubs? फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्टार्टिंग में Jacobean clubs were created. ऑल वो जो सबसे लोएस्ट क्लास थी सोसाइटी की, द शॉपकीपर्स एंड पेस्ट्री कुक्स एंड ऑल, दे हैव मेड Jacobean clubs. और इन Jacobean clubs की वजह से ही फ्रांस में कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन हुआ था. सो व्हेन दिस न्यूज़ स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, the people there, the students, the educated classes, they started creating Jacobean clubs there because they also wanted to get freedom from monarchy. Their activities and campaigns prepared the way for the French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s. Now these people in other countries, they made Jacobean clubs. They even invited French armies to come to their country and get them freedom from their kings. उन्होंने French armies को invite किया और उनकी help से French armies in countries तक पहुँची, Holland, Belgium, Switzerland and Italy, 1790s में. With the outbreak of the revolutionary wars, these were called as revolutionary wars. Starting. What is the meaning of outbreak? Starting. Revolutionary wars start हो गए. French armies हॉलैंड गई, वहाँ की आर्मी के साथ उसे फ्री कराना था.
लोगों ने, लोकल पीपल ने हेल्प करी फ्रेंच आर्मीज़ की. सो दीज वर द स्टार्टिंग ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर्स. द फ्रेंच आर्मीज़ बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड. सी, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय फ्रेंच आर्मीज़. सबसे पहले तो फ्रेंच आर्मी ने किसकी हेल्प करी फ्री होने में? अमेरिका की. अमेरिकन रेवोल्यूशन भी कहीं ना कहीं किसकी हेल्प से हुआ था? फ्रेंच आर्मीज़ की हेल्प से. खुद की कंट्री में भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन. एंड नाउ दीज आर्मीज दे स्टार्टेड गोइंग टू अदर नियर बाय कंट्रीज टू हेल्प देम गेट फ्रीडम. सो द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्टार्टेड गोइंग आउट ऑफ फ्रांस. फ्रांस के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज थे, हॉलैंड, बेल्जियम, इटली, वहाँ तक अब ये आर्मीज़ जा रही हैं. लोकल पीपल इन्हें वेलकम कर रहे हैं और ये आर्मीज़ इन एरियाज़ में लोकल पीपल की हेल्प कर रही है. एंड हु इज़ लीडिंग दीज फ्रेंच आर्मीज़? दे आर लेड बाय द कमांडर नेपोलियन. इन आर्मीज़ का कमांडर कौन है अभी? ही इज़ जस्ट एन आर्मी कमांडर ऑफ फ्रेंच आर्मीज़, नेपोलियन. सो व्हाट डिड नेपोलियन डू? He took these armies to neighboring countries and started conquering them. धीरे धीरे उसने ये सारे कंट्रीज़ को फ्रेंच एम्पायर में मिलाना शुरू कर दिया, फ्रेंच एम्पायर के साथ. तो अब एक बड़ी एम्पायर क्रिएट हो रही है. सो विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, एंड स्लोली व्हाट हैपेंड? आई गेव यू द ईयर 1804. ही बिकेम द मोनार्क ऑफ द कंट्री, रूलर ऑफ द कंट्री. तो स्टार्टिंग हुई 1790s में वॉर्स के साथ. नेपोलियन वॉज द कमांडर. ही स्टार्टेड कॉन्करिंग दीज एरियाज और उसने एक बहुत बड़ी टेरिटरी को कॉन्कर कर लिया. सो विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. See, Napoleon had already become the ruler of France. Emperor नहीं बोला मैंने, अभी मैंने बोला ruler of France. उसने अपने आप को ruler, क्योंकि रिपब्लिक था, president was the head of the country, so he became that ruler of France. He introduced many reforms. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है, नेपोलियंस रिफॉर्म्स. सो ही हैड इंट्रोड्यूस्ड मेनी रिफॉर्म्स इन फ्रांस ऑलरेडी. जैसे जैसे वो एरियाज कॉन्कर करता गया, दूसरे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड एंड ऑल, एज ही स्टार्टेड कॉन्करिंग दीज एरियाज, ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड दीज रिफॉर्म्स इन दोज एरियाज ऑल्सो. जो टेरिटरी उसने कॉन्कर करी थी वहाँ भी उसने उन रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया. थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, 1804, what did he declared himself? As the monarch of the country. I am the king. जैसे ही नेपोलियन ने कहा I am the king, I am the monarch, फ्रांस में क्या खत्म हो गई? डेमोक्रेसी, रिपब्लिक खत्म और वापस से कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई? मोनार्की. सो व्हेन ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द मोनार्क, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट ही वॉज नॉट दैट क्या कहेंगे, बैड मोनार्क या डेस्पोटिक मोनार्क जो कि पहले थे, जो लुई 16 था. वैसा किंग नहीं था नेपोलियन, बिकॉज ही हैड कम फ्रॉम कॉमन मैन. ही बिलोंग टू दैट कैटेगरी. सो ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स. बहुत सारे सुधार हैं जो नेपोलियन ने फ्रांस में इंट्रोड्यूस किए. पहले फ्रांस में किए, फिर जैसे जैसे टेरिटरीज कॉन्कर करता गया, उसने एक बहुत बड़ी फ्रेंच एम्पायर बनाई. टेरिटरीज कॉन्कर करता गया, देयर ऑल्सो ही इंट्रोड्यूस दोज रिफॉर्म्स. लेकिन इसे हम रिफॉर्म नहीं कहेंगे. दैट ही फिनिश्ड, ही एंडेड डेमोक्रेसी एंड ब्रॉट बैक मोनार्की टू फ्रांस. He had destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसे बहुत रैशनल, लॉजिकल, एफिशिएंट, क्विक काम करने वाला इस तरह का बनाया. अंडर मोनार्की बहुत आराम से काम होता था. वो एस्टेट्स वाला सिस्टम था, डिवीजन ऑफ सोसाइटी था, रिच पीपल इंजॉइंग एवरीथिंग एंड पुअर पीपल वर पेइंग ऑल टैक्सेस, वो था. नेपोलियन भी मोनार्क बना, लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम
ज़्यादा प्रैक्टिकल था, ज़्यादा सही था. नाउ वी आर गोइंग टू रीड व्हाट वाज दैट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. द सिविल कोड ऑफ 1804, अंडरलाइन करो बच्चों ये लाइन. द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड. दोनों नाम से पढ़ सकते हैं हम इसको. दिस इज सिविल कोड ऑफ 1804 ऑल्सो, एंड यू कैन गेट अ क्वेश्चन बाय द नेम नेपोलियनिक कोड. दोनों नाम से क्वेश्चन आ सकता है. द आंसर विल बी द सेम. सो पॉपुलरली इन हिस्ट्री इट इज नोन एज नेपोलियनिक कोड. ही डिड अवे का मतलब रिमूव्ड, खत्म कर दिया, विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ. वो एस्टेट सिस्टम के टाइम फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस, सुविधाएं, फैसिलिटीज मिली हुई थी वो सब इसने खत्म कर दी. एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ. सेम क्राइम सेम पनिशमेंट, whether you are a clergy or belong to royal family or a common man. If you are doing same crime, then you will be given same punishment. That is equality before the law, and secured the right to property. अभी तक थर्ड एस्टेट को कोई भी राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था. प्रॉपर्टी सिर्फ कौन रख सकता था? फर्स्ट टू एस्टेट्स. बट आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन नो एस्टेट्स, all were citizens of the country, so everybody was given right to property. They can buy property. तो ये this was civil code. और भी है आगे. This code was exported to the regions under French control. First he introduced this code in France, and as he kept conquering other areas, वहाँ भी ये civil code implement किया गया. In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy, in Germany, ये सारे areas थे which were conquered by Napoleon, and he implemented civil code there. Napoleon simplified administrative divisions. Now it has become a very big territory. Even France is a very big country, and slowly his empire expanded. जैसे जैसे empire expand हो रही थी, एक सेंट्रल अथॉरिटी से रूल करना मुश्किल हो रहा था. सो ही डिवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स. पता है बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स किसे कहते हैं? चलो बताओ हमारी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स क्या हैं? सबसे पहले है कंट्री, देन कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू तहसील्स एंड पंचायत्स एंड ऑल. हाँ, तो ये सब क्या है? हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं. उसने भी ऐसा ही किया ताकि गवर्न करना, गवर्नमेंट चलाना आसान हो जाए. तो ही डिवाइडेड, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, अबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम. वो रिच और रॉयल क्लास और मास्टर क्लास जो थी उसे ख़त्म कर दिया सारा. एंड फ्रीड पीजेंट्स. हुआ पीजेंट्स? फार्मर्स. फ्रॉम सर्फडम, स्लेवरी. अभी तक दो ही सेक्शंस थे सोसाइटी में, द रिच एंड पुअर, द मास्टर सर्वेंट, the landlords and the peasants who were working as slaves on those landlords' land. उस और सारा लैंड किसका होता था? लैंडलॉर्ड्स का. दे वर फ्यूडल लॉर्ड्स. वो ख़त्म किया. जितने भी पीजेंट्स इन लैंडलॉर्ड्स के यहाँ पर गुलामों की जैसे काम कर रहे थे उन्हें फ्री कर दिया, ख़त्म कर दिया. मिनोरियल ड्यूज, उनके सारे कर्जे माफ़. हाँ, उन्हें लैंड दिया गया सो दैट दे कैन टिल देयर ओन लैंड. ये तो हुआ विलेज में, रूरल एरियाज़ में. इन द टाउन्स टू, सिटीज़ में भी उसने क्या किया? गिल्ड्स रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड. गिल्ड्स होते हैं बच्चों जो एक पर्टिकुलर बिजनेस में होते हैं, ऑक्यूपेशन या बिजनेस जिसे हम कहते हैं, उनके अपने ग्रुप्स होते हैं. वो ग्रुप्स अपने खुद के रूल्स बनाते हैं और उन रूल्स के हिसाब से ही बिजनेसमैन को बिजनेस करना पड़ता है. कई बार बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती थी. ये बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस थे ऑन बिजनेस. कोई भी आप ट्रेड करना चाहते हो या बिजनेस करना चाहते हो, सो दे वर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स. तो बिजनेसमैन के लिए बहुत मुश्किल होता था कोई भी काम करना. नेपोलियन ने सबसे पहले इन गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किया. बिजनेस पीपल वर गिवन फ्रीडम टू डू बिजनेस. दिस वॉज इट. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड. और क्या किया उसने? बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन सिस्टम. बिजनेस में आप समझ सकते हो
कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बेटर ट्रांसपोर्ट, जल्दी गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना पॉसिबल होता है। अगर आप बेटर कम्युनिकेट कर पाते हो तो ज़्यादा अच्छा बिजनेस होता है। और वैसे भी ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कॉमन मैन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट था, टू कीप इन टच विथ ईच अदर, टू मूव थ्रू आउट द कंट्री। ये सब उसने इम्प्रूव किया। सो ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है बच्चों, दिस इज दैट सिविल कोड और द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन 1804। ये सब आते हैं सिविल कोड। और कोड तो ऊपर वो एक लाइन में हमने समझा, फिर ये आगे के रिफॉर्म्स हैं विच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन नॉट ओनली इन फ्रांस बट इन ऑल दोज टेरिटरीज विच वर कॉन्कर्ड बाय नेपोलियन। ठीक है, तो ये स्टोरी हमारी आज यहीं तक है। इन रिफॉर्म्स का क्या असर हुआ और नेपोलियन ने जो टेरिटरीज कॉन्कर करी थी उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन, go through the chapter that we have done today and keep reading.